Good morning, students. See, in today's session, we are going to see importance of macroeconomics. अभी अपने already features पढ़ लिया है, scope देख लिया है. In today's session, we are going to see importance of macroeconomics. First one is functioning of an economy. Macroeconomic analysis gives us an idea of functioning of an economic system. It helps us to understand the behavior pattern of aggregate variables in a large and complex economic सिस्टम से जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस है, गिव अस एन आइडिया ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम. इट गिव अस एन आइडिया, हमको जो इकोनॉमिक सिस्टम है कैसे फंक्शन कर रही है उसका आइडिया हमें मिलता है. इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर पैटर्न ऑफ एग्रीगेट वेरिएबल्स इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम से ये इससे हमें पता चलता है कि जो बिहेवियर पैटर्न है ऑफ एग्रीगेट वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स मतलब जो चेंज होता रहता है उसके बिहेवियर पैटर्न इन अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम. अभी इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, बहुत लार्ज है, कॉम्प्लेक्स है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस we can understand the functioning of an economic system, and it also help us to understand the behavior pattern of aggregate variables in a large and complex economic system. Now next one is economic fluctuations. Macroeconomic help us to analyze the cause of fluctuation in income, output and employment and makes an attempt to control them or reduce their severity. So जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इट हेल्प्स टू एनालाइज द कॉज ऑफ फ्लक्चुएशन. ये हमें हेल्प करता है टू एनालाइज द कॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन इनकम. इनकम जो है वो कैसे क्यों फ्लक्चुएट होता है, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड मेक एन अटेम्प्ट. इट ऑल्सो मेक एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल देम और रिड्यूस देयर सीवियरिटी. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से वी गेट टू नो, इट हेल्प टू एनालाइज the causes of fluctuations in income, output and employment and make an attempt to control them or reduce their severity. Now next is national income. Study of macroeconomics has brought forward the immense importance of the study of national income and social account. Without a study of national income, it is not possible to formulate correct economic policy. See, study of macroeconomics has brought forward the immense importance of the study of national income and social account. See, इसकी स्टडी ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स की वजह से हमें पता चला है द इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट. See, without a study of national income, it is not possible to formulate correct economic policies. See, अगर आपको नहीं पता है कि आपकी कंट्री में क्या प्रॉब्लम्स है, किस लेवल की प्रॉब्लम्स है, what is the kind of behavior, what is the actual national income and the social accounts in sense, what are the problems which is prevailing in your country. If you're not knowing all this, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू फॉर्मुलेट करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी. तो ये आपके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा कि एक सही इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आप फ्रेम कर सको. तो स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज ब्रॉट फॉरवर्ड द इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट्स so that it can frame a suitable policy. So it can frame a suitable economic policy for the economic development of the country. अगर आप नेशनल इनकम की स्टडी अगर आप नहीं करोगे, अगर आपको सोशल अकाउंट इन सेंस आपकी कंट्री में क्या प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है एंड जो बाकी सब जो प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स है, अगर आपको इन सब चीज़ों का नहीं पता होगा तो आप एक करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी आप फ्रेम नहीं कर सकते हो जो आपके कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करे. नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Fourth point is economic development. Advanced studies in macroeconomics help to understand the problem of developing countries such as poverty, inequalities of income and wealth, difference in standard of living of people, etc. It suggests important steps to achieve economic development. See, जो economic की जो advanced study in macroeconomics help टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ये हमें हेल्प करती है
प्रॉब्लम समझने की ऑफ डेवलपिंग कंट्री सच एज पॉवर्टी, inequality of income and wealth, difference in standard of living of people. It suggests important step to achieve इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी सजेस्ट करती है जो आपकी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प होगा, जिससे आपकी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। नाउ नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। Macroeconomics help us to analyze the performance of an economy. National income estimates are used to measure the performance of an economy over time by comparing the production of goods and services in one period with that of another period. See, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमें हेल्प करता है टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमिक। आपकी कंट्री की परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है उसको एनालाइज करने में हेल्प करता है। नेशनल इनकम एस्टिमेट आर यूज टू मेजर द परफॉर्मेंस। जो नेशनल इनकम है, ये नेशनल इनकम एस्टिमेट्स है, आर यूज टू मेजर द परफॉर्मेंस of an economy over time by comparing the production of goods and services in one period with that of other period। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि आपका नेशनल इकोनॉमिक जो है वो उसमें ग्रोथ हो रहा है या वो कम हो रहा है? तो आपको पता कैसे चलेगा? आपको पता चलेगा जब इट विल बी इजी फॉर यू टू कंपेयर द प्रेजेंट वन विद द प्रीवियस वन, राइट? जब आप प्रेजेंट को प्रीवियस के साथ कंपेयर कर सको, तो ये कंपैरिजन मैक्रो इकोनॉमिक्स के एनालिसिस की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। नाउ नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। To understand the working of an economic, study of macroeconomic variable are important. Main economic problem are related to economic variables such as behavior of total income, output, employment and general price level in the economy. To understand the working of an economy, जब आपको working of an economic जब आपको समझनी है तो you have to study the macroeconomic variable. The study of macroeconomic variable also become important. The main economic problem are related to economic variable such as total income में जो change आ रहा है, output है, employment में जो changes आ रहा है, general price level in the economy. Now next is level of employment. Macroeconomics helps to analyze the general level of employment and output in an economy. जो microeconomics है वो help करता है to analyze the general level of employment. मतलब आपकी कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट है एंड आउटपुट है वो एनालाइज करने में हेल्प होता है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। फर्स्ट वन इज इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी जो कैसे फंक्शन करती है वो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन अंडरस्टैंड, ये हमें उसका आइडिया मिलता है, ये एनालिसिस से हमें उसका आइडिया मिलता है फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। विद द हेल्प ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स it become easy to analyze the causes of fluctuation in income, output and employment. अभी next है national income. Study of macroeconomics has brought forward the immense importance of study of national income and social account. So जब भी आप study of national income अगर आपको पता है, जब आप उसकी study करोगे, study of national income करोगे, analyze करोगे, आप आपका जो social account जो problems है आपकी country में आपको वो पता होगा, then only you can frame a suitable economic policy for your country. फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तभी आप जाके एक सुटेबल पॉलिसी आप क्या कर सकते हो, फॉर्मुलेट कर सकते हो। तो विदाउट द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज। नो नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जो एडवांस स्टडीज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हेल्प करती है आपको to understand the problems of developing country such as poverty, inequalities of income and wealth, difference in standard of living of people etc. It suggests important step to achieve economic development. See, with the help of ये macroeconomics के help से आप जो आपकी country में जो important and you can say the major problems जो है वो आप study कर सकते हो and then उसके लिए आप proper plan कर सकते हो, policies बना सकते हो and it also suggests important step to achieve economic development. Now next is performance of an economy. जो macroeconomics है वो help करता है, it help us to analyze the performance of the economy. आपकी economy की जो performance है उसको analyze करने में help करता है। National income estimates are used to measure the performance of an economy over time by comparing the production of goods and services in one period with that of the other period. So जो national income है, नेशनल इनकम का जो एस्टिमेट्स है आप वो यूज करके आप
इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस है आप उसको क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। अभी जो जो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है इन वन पीरियड, जब आप उसको दूसरे पीरियड से आप जब कंपेयर करोगे, दो अलग अलग ईयर को जब आप कंपेयर करोगे, तो आपको आपकी जो इकोनॉमी है उसका परफॉर्मेंस आपको पता चलेगा। तो विद द हेल्प ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स यू कैन स्टडी एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। नाउ नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। जब आप जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल है, जब आप उसकी स्टडी करते हो, उसकी स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट डील विद इट help it study the main economic problems such as behavior of total income, output, employment, जनरल प्राइस लेवल एंड इकोनॉमी। तो जब आप जो वेरिएबल्स है, जो वेरिएबल्स मतलब जिसमें चेंज आने से जो टोटल है उसमें चेंज आ रहा है, तो उसकी स्टडी जब आप करोगे तो आपको आपका एक्चुअल जो पोजीशन है वो आपको समझेगा। तो टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर इंपॉर्टेंट। अगर आपको आपकी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसकी अगर आपको स्टडी करना है, आपको समझना है, अगर आपको आपकी कंट्री की जो वर्किंग ऑफ इकोनॉमी है उसको समझना है, तो फॉर दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी टू एनालाइज इकोनॉमिक वेरिएबल। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर इंपॉर्टेंट। वर्किंग ऑफ इकोनॉमी समझना है तो यू हैव टू स्टडी the macroeconomic variables. Okay, now next one is level of employment. Macroeconomic help to analyze the general level of employment and output in the economy. अभी देखो यहाँ पे डिस्टिंग्विश दिया है, बेसिस ऑफ कंपैरिजन दिया है, मीनिंग बताया है। माइक्रो इकोनॉमिक जो है इट स्टडी द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एज अ होल क्या करता है, स्टडी करता है। नेक्स्ट है टूल्स, इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई, और यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट, टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई। अब स्कोप क्या, जो स्कोप, एरियाज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड एरियाज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इकोनॉमिक वेलफेयर एक्सेट्रा। यहाँ पे नेशनल इनकम है, जनरल प्राइस लेवल है, एम्प्लॉयमेंट, मनी एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंस, प्राइस डिटर्मिनेशन, मॉडल बिल्डिंग, बिजनेस डिसीजन, और यहाँ पे इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेट्रा। So you have to write this distinguish 3 times, and with this I would like to end the session, and this topic is completed. First topic is completed.